Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online lectures, Social Studies Class 5. Unit number 2, Geography of Pakistan, Lesson number 5, Our Country. Dear students, open page number 42 of your book. We will continue from the discussion about the Museum of Quetta and Balochistan, that is full of different collections of things from Mohenjo-daro, the Stone Age, and from Mughal and British period. As well, the famous Museum of Geology has exhibitions of fossils of dinosaurs and reptiles too. Well, this museum arranged some exhibitions for the tourists and for the people who take interest in museum and prehistoric times. Now let's talk about Pakistan and the world. In this topic, we will talk about different associations. Pakistan is the member of them and its relation with other countries of the world. Pakistan is a member of the United Nations called UN and also regional bodies like the South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC. SAARC is the short form or abbreviation of the South Asian Association for Regional Cooperation. Pakistan is also a member of the OIC, now known as the Organization of Islamic Cooperation. These are three organizations that Pakistan is the member of these associations. Being a part of these international bodies helps in discussing and solving problems that may arise from time to time. पाकिस्तान को जो मसाइल वक्त के साथ साथ दरपेश होते हैं, ये एसोसिएशंस उनको सॉल्व करने में पाकिस्तान को हेल्प आउट करती हैं. We have friendly relations with most countries and also have trade ties with many. A large number of people from all over the world visit Pakistan for business and official trips and as tourists. पाकिस्तान में पूरी दुनिया से बहुत से लोग बिज़नेस के लिए, कुछ लोग अपने ऑफिशियल ट्रिप्स पर और कुछ एज अ टूरिस्ट विज़िट करते हैं. दे कम हेयर टू विज़िट फेमस हिस्टोरिकल साइट्स एंड बिल्डिंग्स. पाकिस्तान में बहुत सी तारीख़ी इमारात हैं जिनकी सैर करने के लिए मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग पाकिस्तान की सैर के लिए आते हैं. दे ऑल्सो वॉन्ट टू सी ऑल द ब्यूटीफुल प्लेसेस बिसाइड्स साइट सीइंग. टूरिस्ट कैन गो ट्रैकिंग, mountaineering, fishing and hunting and take part in many other activities. Pakistanis have always been good at sports and we have some world class sports team here. Our cricket and hockey teams and our squash players are known throughout the world. We also have many sports facilities and export sports equipment to many countries. Pakistan is also rich in many different sports and it exports so many sports equipment to other countries. As we know that football is a very famous sports equipment that is exported from Pakistan to other countries. The next point is a nuclear future. A nuclear future. Pakistan is the first Islamic country to have developed a nuclear facility. पाकिस्तान सबसे पहला इस्लामी मुल्क है जिसने न्यूक्लियर पावर हासिल की. पाकिस्तान टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटी at Chaghi in Balochistan in May 1998, but Pakistan is committed to the peaceful use of nuclear energy, especially for power plants to supply electricity. पाकिस्तान के पास 1998 में यानी 1998 में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी
आ गई, लेकिन ये न्यूक्लियर एनर्जी पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन के हसूल के लिए इस्तेमाल करती है. यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट some of the many ways the government works for its people. One key role is that the government provides public services and goods for the benefits of all people. Services include a national defense force, the police, and fire protection. Public goods are economic products that are used directly and collectively. These include highways and sanitation system. पाकिस्तान में लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए बहुत सी पब्लिक और प्राइवेट सर्विसेज भी मुहैया की गई हैं, फ़राहम की गई हैं. दे प्रोटेक्ट ऑल द पीपल ऑफ पाकिस्तान लाइक डिफेंस फोर्सेस, पुलिस, फायर प्रोटेक्शन एंड पब्लिक गुड्स आर इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स. और बहुत सी इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स भी पाकिस्तान के लोगों के बेनिफिट के लिए प्रोवाइड की गई हैं. पब्लिक नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज. पब्लिक गुड्स और सर्विसेज आर बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू every citizen by the government. Their use by one or more citizens does not reduce their availability to others. Public transport, roads, bridges, national security, water supply, a clean environment, parks, hospital, education, and the cultivation and availability of food crops are just a few examples of public goods and services offered to the people by their government. गवर्नमेंट ने लोगों की सहूलत के लिए, लोगों की इस्तेमाल के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड की, जिनमें सड़कें, ब्रिजेस, पुल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई और लोगों के लिए पार्क्स, हॉस्पिटल, एजुकेशन लाइक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और डिफरेंट क्रॉप्स फॉर फूड आर ऑल्सो provided for the people of Pakistan. Private goods and services. Private goods are the opposite of public ones. Private goods are not available to everyone but only to those who pay for them. प्राइवेट गुड्स की भी फैसिलिटी पाकिस्तान में प्रोवाइड की जाती है, लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ उन लोगों को दी जाती है जो उसके लिए पे करते हैं. एग्जांपल्स ऑफ प्राइवेट सर्विसेज आर गेटिंग अ हेयर कट, ईटिंग एट अ रेस्टोरेंट एंड हैविंग योर क्लोथ्स टेलर्ड. रेस्टोरेंट, getting a haircut and clothes tailoring are the examples of private goods and services. Come to the next point, that is the armed forces. Pakistan's army, navy and air force have always played an important part in the country's history. पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयर फोर्स ने बहुत ही अहम किरदार हमेशा अदा किया है. आवर आर्म्ड फोर्सेस आर मॉडर्न, वेल इक्विप्ड एंड क्वाइट केपेबल ऑफ डिफेंडिंग आवर कंट्री. ये मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और इनके पास मुकम्मल साजो सामान मौजूद होता है और ये बहुत ही काबिलियत के हामिल हैं. These forces also do a lot of good work during peace time and provide valuable support during any natural calamity. As part of UN peacekeeping missions, Pakistani troops have been serving in countries where conflicts or wars break out. Pakistan is one of the top 5 providers of UN peacekeepers. In Pakistan, young people also have the opportunity of joining the Boy Scouts or Girl Guides. पाकिस्तान में नौजवान लोग या नौजवान लड़के और लड़कियां बॉय स्काउट्स और गर्ल गाइड्स के मौके भी हासिल करते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस लाइक दीज हेल्प यंग पीपल टू डेवलप एज रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग एंड यूजफुल सिटीजन्स. और गर्ल गाइड्स और बॉय स्काउट्स बनने से नौजवानों में एहसास ज़िम्मेदारी और दूसरों के लिए देखभाल करने का जज्बा पैदा होता है और वो एक बहुत ही अच्छे शहरी बन सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट,
The next point is social services. The government of Pakistan has to make sure that all its different departments function properly. पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस बात की यकीन दहानी कराती है कि उसके तमाम डिपार्टमेंट्स अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से अपने तमाम काम सरअंजाम दे सकें. द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग स्टेट हॉस्पिटल, स्कूल एंड कॉलेजेस, सेविंग स्कीम्स, लाइब्रेरीज एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प children, orphans and the different people of the country like handicapped people. Handicapped people are those people that who are special people. There are many private institutions too in the country that provide social services. और बहुत से ऐसे भी इदारे हैं पाकिस्तान में जो प्राइवेटली काम करते हैं और सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. नाउ कम टू वर्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान? टू सॉल्व आवर कंट्रीज प्रॉब्लम्स वी ऑल हैव टू वर्क हार्ड टू ओवरकम दैम. सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स आर illiteracy, a rapid rise in the population, unemployment, diseases, poverty and corruption. पाकिस्तान के बड़े मसाइल में से इलिटरेसी यानी नाखानदगी यानी अनपढ़ तबके का होना यानी लोगों का पढ़े लिखे ना होना और आबादी में इजाफ़ा और लोगों के पास जॉब की सहूलत ना होना, बहुत सी बीमारियां, गुर्बत, करप्शन, ये तमाम मसाइल पाकिस्तान में मौजूद हैं और इनको हल करने के लिए और इन पर काबू पाने के लिए हमें सख्त मेहनत करनी होगी. देयर आर मैनी पीपल इन द कंट्री हु आर वेरी पुअर एंड हैव नो प्रॉपर होम्स और एनी अदर फैसिलिटीज़. हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनके पास रहने के लिए घर नहीं होते और ना ही उनके पास कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ होती हैं. दे कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू हॉस्पिटल व्हेन दे फॉल इल. जब वो बीमार होते हैं तो उनके पास हॉस्पिटल जाने के लिए भी कोई इंतज़ाम नहीं होता. मैनी पीपल इन द विलेजेस एंड फार ऑफ प्लेसेस कैन नॉट एजुकेट देयर चिल्ड्रन. A lot of people also have no regular jobs and this adds to the poverty in the country. बहुत से लोग जो गांव में और दूर दराज इलाकों में रहते हैं वो अपने बच्चों को मुनासिब तालीम नहीं दिलवा सकते और इसलिए उन्हें अच्छी जॉब्स भी नहीं मिलती हैं. इस तरह कंट्री में यानी मुल्क में गुर्बत में इजाफ़ा हो रहा है. Another problem that Pakistan faces is our energy crisis. Our population is growing and we struggle to produce enough energy to supply the needs of all these people in the modern age. These ongoing problems are being tackled in different ways. You will learn more about this in the lesson in this unit. इस यूनिट में आप बहुत से मसाइल और उनको हल करने के मुख्तलिफ तरीक़ों के बारे में भी जानेंगे. In recent years, Pakistan has been faced with the very serious problem terrorism. Terrorism means to cause fear or terror in someone. टेररिज़म का मसला बहुत ही संजीदा जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, ये पाकिस्तान में मौजूद है. टेररिज़म का मतलब है किसी शख्स की वजह से खौफ की फैलाना या खौफ की वजह बनना. टेररिज़म आर नॉट सपोर्टेड बाय एनी रिलीजन इन द वर्ल्ड एंड हैव देयर ओन मोटिव्स. टेररिज़म को दुनिया का कोई भी मज़हब कबूल नहीं करता, ना ही उसकी हमायत करता है, बल्कि इनके अपने ही कुछ मकासद होते हैं. दे यूज़ वायलेंस टू टारगेट स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ पीपल और द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री एंड मेक अनलॉफुल डिमांड्स फॉर थिंग्स they want such as arms, weapons और money. टेररिस्ट एक ख़ास ग्रुप होता है लोगों का जो गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट से गैर कानूनी तौर पर कुछ डिमांड्स करते हैं जो वो हासिल करना चाहते हैं. लाइक दे वांट आर्मी
they want weapons, or they want money from the government of any country. So they spread violence in all over the country. They threaten to harm or actually cause harm to innocent people if their demands are not met. अगर उनके मुतालबात ना माने जाएं तो वो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें धमकाते हैं, डराते हैं. पाकिस्तान इज़ डीपली इन्वॉल्व इन फाइटिंग टेररिज्म एंड इज़ इन अ वार लाइक सिचुएशन अगेंस्ट द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस. पाकिस्तान टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रहा है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ भी बहुत से इक़दामात भी उठा रहा है. इट हैज़ मेड प्रोग्रेस इन डिसरप्टिंग टेररिज्म देयर बाय मेकिंग द कंट्री अ मच सेफर प्लेस. क्योंकि पाकिस्तान अपने इस मुल्क को एक महफूज मुकाम या जगह बनाना चाहता है. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, Pakistan and you. What can you do to help to solve some of these problems? Dear students, as we have read about the problems that Pakistan is facing all the time, and in this lesson we have read about the problems of Pakistan, and we also try to find the solution of these problems. So how can you be a good Pakistani? By working hard at school and paying attention to your teachers and parents. The first thing that as a student you can do is that you have to work hard at school, and you must be pay attention on the teachers and parents. You will grow up to be a good citizen and a useful member of society. आपको सख्त मेहनत करनी है, अपने असातिज़ा और अपने वालिदैन की हर बात को मानना है, उनकी बातों पर तवज्जो देनी है और मेहनत से एक कामयाब और अच्छा इंसान बनना है जो माशरे के लिए एक यूज़फुल सिटीज़न बन सकें. सिंस यू कैन रीड एंड राइट, यू कैन हेल्प टू रिड्यूस इलिटरेसी इन द कंट्री बाय टीचिंग अदर्स. जब आप पढ़े लिखे होंगे तो आप मुल्क में दूसरों को पढ़ाकर इलिटरेसी में कमी ला सकते हैं. बाय स्प्रेडिंग लिटरेसी वी कैन ऑल्सो कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ एंड पॉवर्टी. अगर हम पढ़े लिखे होंगे या फिर हम पढ़ाई को आम करेंगे तो मुल्क में गुर्बत और बीमारियां फैलने से भी कंट्रोल होंगी. You must be honest in everything you say and do so that everyone you know will trust you. अगर आप ईमानदारी से हर काम करेंगे और ईमानदारी की बात करेंगे तो हर कोई आप पर ट्रस्ट करेगा, यकीन रखेगा. पाकिस्तान हैज़ स्ट्रॉन्ग नेशनल वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस. पाकिस्तान की इक़दार, इसकी रवायात बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. इट इज़ कल्चरली एंड जियोग्राफिकली डाइवर्स. Be proud of the good aspects of Pakistan because it is your homeland and part of your identity. हमें पाकिस्तान पर फ़ख्र करना चाहिए क्योंकि ये हमारा प्यारा वतन है और यही हमारी पहचान है. We must set an example and be positive. When we celebrate our Independence Day, Pakistan Day or Defense Day, we should remember the sacrifices made by our great ancestors and work hard for a better future for Pakistan. जब हम अपना योम आज़ादी या योम दिफा मनाएं तो हमें अपने आबाओ इजदाद की मेहनत, उनकी कुर्बानियों को याद रखना चाहिए और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए. You can contribute a great deal toward the good name of our country by being honest. In order to gain the trust of others, you must prove your honesty and loyalty to the work you do. आप जो भी काम करें आपको ईमानदारी से करना चाहिए, जिसकी वजह से आप पर सब ट्रस्ट करेंगे, सब भरोसा रखेंगे. As a student, you should study hard so you can apply the knowledge you have gained later in life.
एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म होने के नाते आपको सख्त मेहनत के साथ पढ़ाई करनी चाहिए जो ज़िंदगी में आपके काम आएगी. If you learn to become a responsible student, you will become a responsible citizen when you grow up. अगर आप एक अच्छा और रिस्पॉन्सिबल, एक ज़िम्मेदार तालिब इल्म बनते हैं और अच्छा सीखते हैं तो आप बड़े होकर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सकते हैं. By following your family values as well as the rules of your school, you will learn the importance and benefits of following the laws of your country. People working in all professions like nurses, doctors, teachers, policemen, engineers, businessmen, etc. should be honest in their work. Never pay bribes or take bribes. This is a form of corruption. सूद लेना और देना. ब्राइब इज़ द अदर वर्ड फॉर सूद, यानी ब्राइब उर्दू में सूद को कहा जाता है और सूद लेना और देना दोनों ही बुरी बात है और ये करप्शन है. Some people ignore rules and laws for their personal benefit. कुछ लोग अपने ज़ाती मुफाद यानी अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए रूल्स को फॉलो नहीं करते. बट सच एक्शन कॉज हार्म टू द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री. लेकिन उनका ये अमल मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, बाय नॉट पेइंग टैक्सेस दे मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू fund important projects like building roads, schools, hospitals, and industries. Similarly, when people steal or misuse electricity, water, gas, and telephone services, the government faces problem in providing these resources or to factories, schools, hospitals, and homes. जब लोग अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से पूरा नहीं करते, जब वो टैक्सेस पे नहीं करते और मिसयूज़ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, गैस और टेलीफोन सर्विसेज का गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो गवर्नमेंट के लिए मसाइल पैदा करते हैं और जो मुल्क की तरक्की के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट बन जाते हैं. बाय कीपिंग योर एनवायरनमेंट क्लीन यू कैन हेल्प टू मेक पाकिस्तान एन इवन मोर ब्यूटीफुल प्लेस. अगर आप इन्वायरमेंट को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें तो आप पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने में मदद कर सकते हैं. इफ़ वी ऑल डिसाइड टू वर्क टुगेदर विद करेज एंड ऑनेस्टी, अगर हम सब इकट्ठे होकर सब मेहनत करने का, काम करने का और ईमानदारी से और हिम्मत और जुर्रत से काम करने का फ़ैसला कर लें तो वी कैन मेक पाकिस्तान अ ग्रेट नेशन. तो हम पाकिस्तान को एक अजीम कौम बना सकते हैं. This is all for today, dear student. Hope you understand all the points of lesson number 5, our country. Thank you so much. Stay home, stay blessed. I wish you best of luck for your future. Thank you so much. Allah Hafiz.